Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. Once again, welcome you all to the December 2022 amendment series for CS Professional. And in this class, we will discuss about the December 2022 amendments for the subject called as Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence, SACMDD, and CS Professional Group Second. So I think you must be aware that we have already completed the December 2022 amendments for GMRC. We have done that, and then we have also completed the December 2022 amendments for RCD and for CRIV as well. So once we are done with the secretarial audit, we'll move to the group number 3 and we'll start with the corporate funding and the MDCS amendments. So now let's get started with this amendment series, but before I do that, I'd like to give you a brief introduction about myself. I know that you have already been watching our detailed classes, and some of you may also be watching our fast track batches as well. And English, like in complete English, the way I'm speaking right now, or in Hindi, in normal Hindi language. So सभी को एक बार जनरलाइज तौर पर एक बार फिर से अपने बारे में बता दूं, बिकॉज इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत दिनों बाद बहुत महीनों बाद मिल रहे हैं शायद. So apart from my name, I qualified CS in the year 2012 and my ICSI membership number is 30321. And since I qualified CS, I have been doing job. So it's been more than 10 years now that I'm working in corporates. And the good part is that side by side, I'm also managing to teach, and I've been teaching for kind of more than 10 years in CS Executive and CS Professional. So that's something about me. And then I've also done the LLB. I mean, LLB is like very basic in terms of the graduation, after graduation, like BCom, LLB, and then I've also done LLM. Right now I'm trying actually to pursue LLD. Not started yet, but yes, just exploring, because LLD is kind of a doctorate one, but very limited colleges in India actually provide the course of LLD. So I'll keep you updated as and when I do anything about it. So now let's get started with this December 2022 amendments for this subject. Now this subject really has a lot of amendments, so we'll discuss that one by one, and we'll take it from there. So let's now get started with this, and I can also tell you one more thing which is really important for you to know, that apart from this amendments, we do also have test series available with us for CS Professional and CS Executive for all subjects. So once you have done with your preparation and then आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि भाई और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, then you should enroll for our test series which is available for all subjects. And the best part about test series is कि मैं उस टेस्ट सीरीज़ को खुद उसका क्वेश्चन पेपर खुद ड्राफ्ट करता हूँ, खुद ही उसको चेक करता हूँ. अनलाइक बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसा देखा है, सुना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ही टेस्ट सीरीज़ आपकी चेक कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है. मैं खुद उसको बना के चेक करके आपको एक इवैल्यूएशन शीट भी देता हूँ जिसमें आपकी गलतियाँ क्या हैं या किन चीज़ों को और आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसके बारे में बात होती है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अमेंडमेंट्स के बारे में बात करना. और सबसे पहला जो चैप्टर है जिसके अमेंडमेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज द चैप्टर नंबर 2, ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लायंस. नाउ कंप्लायंस आई थिंक बहुत छोटा सा वर्ड है और सुनने में बहुत ईजी लगता है वर्ड. ईजी इन द सेंस मतलब बड़ा नॉर्मल सा लगता है, बट आई थिंक कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंप्लायंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कंप्लायंस जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के भरोसे होते हैं बहुत बार. बिकॉज यू आई एम श्योर आने वाले दिनों में जब आप CS बन जाएंगे, विच डेफिनेटली आप बनेंगे, तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी उसके कंप्लायंसेस जो भी एप्लीकेबल हैं वो आप फुलफिल कराएं. तो आज जब हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट्स के तौर पे सेबी का एक कंप्लायंसेस है जो कि लिस्टेड एंटिटी के लिए है, और उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि लिस्टेड एंटिटीज़ जो भी कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह का सोच रही हैं, सो काइंड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जब भी लिस्टेड एंटिटीज़ कुछ अरेंजमेंट्स की स्कीम वगैरह लेके आ रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर एंटिटी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, तो उसे बात बात पे इंफॉर्मेशन देनी है, स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल लेना है, तो ही वो आगे काम कर सकती है. तो पहले क्या होता था इस अमेंडमेंट के आने से पहले कि जो लिस्टेड एंटिटी हैं, अगर वो कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स वगैरह लेके आ रहे हैं,
तो पहले स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल ले लेते थे और उसके बाद अपने सो कॉल्ड एज डिवेंचर ट्रस्टी और क्रेडिटर्स या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल मांगते थे। बट इस अमेंडमेंट के आ जाने के बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे एक आ गया है कि अगर कंपनी कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में एंटर कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। बट दी ओनली कंडीशन इज दैट आप पहले अपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से एनओसी ले लीजिए, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के पास एनओसी के लिए जाइए। तो रादर देन पहले हम स्टॉक एक्सचेंज से पूछें, अब पहले हम क्रेडिटर्स वगैरह से पूछेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, जिसने भी हमें पैसा दिया है, लोन दिया है, उन सबसे पहले उनकी कंसेंट लेंगे और अगर वो लोग मान जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे। आई थिंक जो इसका लॉजिक है वो यही है कि हम ये देखना चाहते हैं या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इस बात पे भी अब विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, बिकॉज ज़्यादा पावर्स अब क्रेडिटर्स को दी है, प्रायोरिटी दी है, क्योंकि अगर क्रेडिटर्स मना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक एक्सचेंज फिर भी ओवर रूल करके अप्रूवल दे रहे। स्टॉक एक्सचेंज भी फिर इस चीज़ को सोचेगा कि क्रेडिटर्स क्यों नहीं एनओसी दे रहे हैं। तो आई थिंक वो एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये जो मैकेनिज्म है इसमें बदलाव किया गया है। आइए देख लेते हैं कि वो क्या है। तो कहते हैं सेबी हैज इशूड अ सर्कुलर टू क्लैरिफाई द इशू पर्टेनिंग टू द स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट बाय लिस्टेड एंटिटी with respect to WRT, मतलब with respect to timing of submission of NOC from the lending schedule, banks, financial institution, trustees, etc. तो यहाँ पे सेबी ने एक जो क्लैरिफिकेशन इशू करी है वो है क्या, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम देख भी लेते हैं उसे। So SEBI has provided clarification of the timelines of submission of no objection certificates from the bank and financial institution in respect of the draft scheme pertaining to the mergers, demergers filed by the listed entity with stock exchange. As per the regulation, listed entity desirous of undertaking a scheme are required to submit certain documents to the stock exchange. So, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, और आप सेबी LODR, ICDR और SAST तमाम सेबी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं या जो भी ये चीज़ें बनाई गई हैं, रेगुलेशंस, इनको पढ़ते हैं। और इवन कंपनीज एक्ट को देख लीजिए तो आप बहुत बार कहते हैं कि मीटिंग होने से पहले, बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, इतने दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। मीटिंग जैसे ही हो जाती है उसके 15 मिनट के अंदर या प्रॉब्ली इतने घंटों के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि क्या फैसला हुआ है। तो मतलब जो भी बातें हैं वो आप छुपाएंगे नहीं, रियल टाइम बेसिस पे भले अपडेशन ना हो पाए कि एकदम करते हैं, बट आपको अपडेट स्टॉक एक्सचेंज को तो करना ही करना है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि जो भी एंटिटीज़ लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, चाहे वो BSE है चाहे NSE है, उनके लिए ये रूल और रेगुलेशन एप्लीकेबल है और इम्प्लीमेंट हो गया है कि लिस्टेड एंटिटीज़ जो हैं पहले वो क्या करेंगी, NOC लेंगी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर ट्रस्टी से, और जब उनको यहाँ से सारी की सारी NOC मिल जाएगी तो उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे NOC के लिए। तो रादर देन स्टॉक एक्सचेंज से NOC लें और उसके बाद इन सब से NOC लें या साइमल्टेनियसली करें, कहते हैं ऐसा नहीं करना है। पहले आप अपने क्रेडिटर से अप्रूवल दे दीजिए। अगर क्रेडिटर्स इस बात के लिए राजी हैं कि आपकी जो कंपनी है इसमें मर्जर, डीमर्जर या किसी भी तरीके से अरेंजमेंट्स हो सके, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो सके, तो मोर देन लाइकली मैं ही नहीं कहता कि अगर ये लोग मान गए तो स्टॉक एक्सचेंज बाय डिफॉल्ट मान जाएगा, बट यस उसके मानने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं इट इज क्लैरिफाइड बाय सेबी दैट NOC फ्रॉम द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल बी सबमिटेड बिफोर द रिसिप्ट ऑफ नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल की बात अब बाद में आ गई, पहले बैंक्स वगैरह से पूछ लीजिए। एंड आप ये समझ रहे होंगे कि जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं तो बैंक से कंपनी क्यों पूछेगी किसी भी चीज़ के लिए, इसीलिए पूछेगी क्योंकि बैंक ने पैसा दिया है, बैंक ने लोन दिया है। और डिवेंचर ट्रस्टी का भी यही है, क्योंकि आप जानते हैं डिवेंचर ट्रस्टी को भी हम काइंड ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही मानते हैं, क्योंकि अगर उनके पैसे नहीं दिए गए, विच मीन्स उनका इंटरेस्ट नहीं पे किया गया या उनका प्रिंसिपल सही समय पर रीपे नहीं हुआ, तो वो कंपनी के एसेट्स भी बेच सकते हैं। हम श्योर आपको डिवेंचर्स के बारे में पता होगी ये बात। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले उन लोगों से अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के पास आइए। तो ये एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो रादर देन टेकिंग दी अप्रूवल साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, फ्रॉम क्रेडिटर्स, अब पहले आपको क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स जो भी हैं उनसे अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही स्टॉक एक्सचेंज के पास आप NOC के लिए जा सकते हैं इस मर्जर या इस अरेंजमेंट की स्कीम के लिए। बात करते हैं आगे रिलेटेड पार्टी को लेके। तो अमेंडमेंट के तौर पे बात करी गई है डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन ऑफ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। देखिए आपने GMRC के अमेंडमेंट्स अगर देखे हों, RCD देखा हो, CRIV,
कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हम रिलेटेड पार्टी के टॉपिक को बात कर ही रहे हैं, बिकॉज आई थिंक RCD है, GMRC, इनमें तो डेफिनेटली बात हुई है। तो जब हम रिलेटेड पार्टी की बात करते हैं तो अपने आप चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सेंसेशन हो जाती हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक पार्शियलिटी की बात सोची जाती है। मैं बहुत बार पहले भी इस चीज़ को आपको कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट प्रोहिबिटेड एट ऑल, दे आर जस्ट बीइंग रेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड इन द फॉर्म कि आपको अप्रूवल लेना है या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके जो यहाँ पे बदलाव किए गए हैं वो ये कि भाई एक कंपनी जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। अब जब इन्फॉर्मेशन देनी है तो किसी तरीके से देनी होगी, कोई फॉर्मेट होगा, तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मेट है उसी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देनी है। कंपनी ये नहीं कर सकती कि ठीक है चलो हम अपना कोई फॉर्मेट बनाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जो फॉर्मेट फिक्स किया गया है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से उसी में आपको आप जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। प्लस आपको ये पता होगा कि जब हम सेबी LODR के कंटेक्स्ट में बात करते हैं एंड इवन इन द कंपनीज एक्ट, तो ऑडिट कमेटी का होना, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये वो कमेटीज़ है जिनका होना ज़रूरी है। बट ऑडिट कमेटी का होना तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब तक ऑडिट कमेटी अप्रूव ना कर दे, अनलेस उनकी पॉलिसी ये हो कि छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए हम ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लेंगे, या एक वर्ड और होता है कि ओमनीबस अप्रूवल ले रखा है कि ठीक है पूरे साल भर ट्रांजैक्शन होती रहेंगी बट उसकी वैल्यू एक अमाउंट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो जब तक वैसा कुछ ना हो आपको हर बार ऑडिट कमेटी से पूछना पड़ेगा। तो उसी को लेके यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉर्मेट है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए, उसी के हिसाब से लिस्टेड एंटिटीज़ को ये रिपोर्ट करना होगा। एंड नॉट जस्ट रिपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज बट लिस्टेड एंटिटीज़ को ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे भी रखनी होगी। तो जब आप ये वीडियो देख लें और आपको ऐसा लगे कि एक बार मैं चेक करती हूँ या चेक करता हूँ कि कैसे इनकी रिपोर्टिंग होती है, तो आप खुद भी किसी भी कंपनी जो लिस्टेड एंटिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के टैब के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि लिस्टेड सिक्योरिटीज या लिस्टेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अपना फॉर्मेट कंपनीज नहीं चलाएंगी, जो फॉर्मेट इशू किया गया है उसी को सबको फॉलो करना होगा। अब जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे रिलेटेड पार्टी को लेके, उसमें आपको ये भी बताना होगा कि क्या ये ऑडिट कमेटी ने ये चीज़ अप्रूव कर दी है और आपने क्या शेयर होल्डर्स को ये चीज़ बताई है, और जिस फॉर्मेट में आप रिपोर्ट कर रहे हैं क्या वो ये वही फॉर्मेट है जो कि सेबी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से अप्रूव किया गया है। तो इस अमेंडमेंट में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि आप ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के बगैर, शेयर होल्डर्स की नॉलेज के बगैर और फॉर्मेट में बिना कोई चेंज किए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाएंगे। तो अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, और जब तक ऑडिट कमेटी उस चीज़ को अप्रूव ना कर दे या शेयर होल्डर्स का आपको अप्रूवल ना मिल जाए या शेयर होल्डर्स की नोटिस में ये बात ना हो, तब तक आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को ऐसे वैलिड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है। इसको करने के लिए मैंने सोचा था पहले फॉर्मेट में यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, बट फॉर्मेट बहुत बड़ा हो जाता, तो फिर मैंने यहाँ पे टाटा की वेबसाइट से अगर आप देखेंगे तो मैंने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर डिस्क्लोजर्स लिया है। अब इन्होंने ये भी बताया गया है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर कंपनी की वेबसाइट पे भी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। देखिए लिखा है था डिस्क्लोजर्स कौन से रिलेटेड पार्टी को लेके was simultaneously made available on the website of the company। तो जितने जो डिस्क्लोजर्स, जैसे डिस्क्लोजर्स आप यहाँ पे दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन आप स्टॉक एक्सचेंज को भेज रहे हैं, वो सारा का सारा आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। आप देखिए टाटा का दोनों जगह लिस्टेड है, तो दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज को ये इंटीमेशन जा रही है, और ये इंटीमेशन भेजने वाला और कोई नहीं है, आप खुद हैं, यानी ये कंपनी सेक्रेटरी है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है। आई एम श्योर बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा, भले वो टाटा कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, जब आपका नाम भी यहाँ पे होगा तो अपना नाम आप चाहें तो अभी भी लिख सकते हैं, बिकॉज अब आप एकदम लास्ट स्टेज पे हैं। और क्योंकि सब कुछ वैसा पढ़ रहे हैं जो एकदम अपडेटेड है, तो मोर देन लाइकली ये जो लास्ट आप पढ़ रहे हैं ये आपको अब CS बना देगा, आपके नाम के आगे CS के प्रीफिक्स जो आप चाहते हैं, दिन रात इसके बारे में सोचते हैं, वो अब आपको मिल ही जाएंगे। मेरी तो बेस्ट विशेस आपके साथ ही हैं। ठीक है, बात आगे करते हैं और अब बात करते हैं ICDR के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनको लेके। तो देखिए ICDR हम सभी ने पढ़ा है कि कंपनी कोई भी पैसा मार्केट से रेज करती है तो ICDR की जो रेगुलेशंस हैं
उसको फुलफ़िल करना होता है। तो ICDR के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं और वो अमेंडमेंट्स क्या हैं आइए देख लेते हैं। बेसिकली ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह हैं उनको लेके हैं और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसको लेके हैं। तो कहते हैं द सेबी वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14 जनवरी हैज़ अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेबी ICDR which has come into force on the date of the publication in the official gazette. The amendment provide as follows. तो अमेंडमेंट क्या क्या है कि the issuer shall place a copy of the certificate from the practicing company secretary before the general meeting of shareholders considering the proposed preferential issue and certifying कि जो हुआ है वो सब कुछ रूल्स के हिसाब से हुआ है, certifying that the issue is being made in accordance with the requirement of SEBI ICDR. देखिए अलग अलग तरीके के इशू हो सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जब हम ICDR का रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो शॉर्ट पैसे रेज करने से ये रिलेटेड है। अब चाहे पब्लिक इशू के थ्रू हो रहा है चाहे प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू हो रहा है, तो अगर कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल इशू निकाला है, किसी भी तरीके की प्रेफरेंस दी है अलग अलग लोगों को, तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग द नेसेसरी कंप्लायंसेस जो करने हैं, चाहे वो ऑफर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, मर्चेंट बैंकर है, जो और नॉर्मल इंटरमीडियरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब करने के अलावा कहते हैं कि इस रेगुलेशन के हिसाब से ये भी एक नई कंडीशन डाल दी गई है कि सब कुछ करने के बाद कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ ऐसे कह दीजिए एक एश्योरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, जो कि इस बात का सबूत होगा या एविडेंस होगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट एक प्रेफरेंशियल इशू करने में आती हैं, चाहे वो कोई रिपोर्टिंग की हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाने की हो, जो कुछ भी हो, कंपनी ने सारी की सारी चीज़ों को कंप्लाई किया है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी सेक्रेटरी के लिए, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के लिए, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, बिकॉज उनके सर्टिफिकेट के बगैर आप ऐसे मान लीजिए कि प्रेफरेंशियल इशू अब नहीं लाया जा सकता। तो ये एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ की बात ये भी है कि ये हमारे शोल्डर्स पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी गारंटी नहीं लेनी है, हमें सब कुछ चेक करना है कि जितने इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं प्रेफरेंशियल इशू के, उन्होंने क्या अपना काम ठीक तरीके से किया है, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस क्या उसके हिसाब से अपना काम किया है या नहीं किया है। आई थिंक वो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बट एनीवे इस अमेंडमेंट का जो पहला पॉइंट था ICDR के कंटेक्स्ट में वो ये कि प्रेफरेंशियल इशू अगर आप लेके आ रहे हैं तो उस प्रेफरेंशियल इशू को लाने के लिए आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि एंड में जब सब कुछ हो जाए तो एक सर्टिफिकेट कंपनी सेक्रेटरी दे जो इस बात का एविडेंस हो कि जितनी भी यहाँ पे बातें करी गई हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, रिपोर्टिंग करी गई हैं, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करती हैं। फिर बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। रजिस्टर्ड विद सेबी शैल henceforth बी परमिटेड टू एक्ट एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी इंस्टेड ऑफ द बैंक्स and the financial institutions. Such monitoring shall continue till 100% instead of 95% utilization of the issue proceed at present. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं ये तो हम सभी को पता है। आप बहुत बार किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं या यूँ ऐसे कह दीजिए कि जब किसी भी कंपनी का IPO आता है या पब्लिक इशू आता है तो उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने आप को रेट कराना होता ही होता है। दैट इज़ मैंडेटरी पार्ट। आपने ये भी सुना होगा कि अगर एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने इशू को आप रेट कराते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो उनमें से दोनों में से बेस्ट रेटिंग हो वो डिस्क्लोज करें, फिर आपको सारी रेटिंग डिस्क्लोज करनी है। हो सकता है किसी ने पहली रेटिंग जो एजेंसी थी उसने A बोला आपको, दूसरी वाली ने B- बोला, तो आप सोच रहे थे कि दूसरी रेटिंग एजेंसी जो है वो A++ देगी, पर उसने तो B- दे दिया, तो आपको दोनों ही रिजल्ट डिस्क्लोज करने हैं। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस बात की भी पहचान होती है कि आपकी कंपनी जो है वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपने आई एम श्योर एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, और वैसे भी आप जानते होंगे कि रेटिंग के अपने अपने अलग अलग मतलब हैं। ए के अंदर भी अलग अलग तरीके की रेटिंग है, 3+ भी हैं, 2 भी हैं, फिर A भी है, फिर A के माइनस भी हैं, सेम गोज विद B, C एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली जितनी रेटिंग अच्छी है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बट फिलहाल अगर हम अमेंडमेंट्स के तौर पे बात करें तो यहाँ पे एक आ गया है कि जो कंपनी ने पैसा मार्केट से लिया है अब वो उसको यूटिलाइज कैसे कर रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक मोमेंट की इंफॉर्मेशन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँचाए, ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे कह दिया गया कि ठीक है, ऐसा करते हैं इस अमेंडमेंट के हिसाब से कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं वो इस चीज़ की देखभाल करेंगी। दे विल मेक श्योर कि भाई जितना भी पैसा कंपनी ने लिया है
जब तक वो सारा का सारा पैसा जो है वो यूटिलाइज नहीं हो जाता, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस चीज़ पर रिपोर्ट सबमिट करती रहेंगी। मतलब मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ मार्केट से लिया फॉर एग्जांपल, अभी 100 में से 60 करोड़ खर्च हुआ है तो पता है कि 40 बचा हुआ है। अब 40 में से 10 खत्म हुआ तो पता है 30 बचा हुआ है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस चीज़ पे नज़र रख रही है जिससे कि पूरा हिसाब किताब रहे, ऐसा ना हो कि कंपनी कुछ पैसा गायब कर दे या पता ही ना चले कहाँ चला गया वो पैसा। तो हमें पता है कि ये इतने 60 करोड़ के बिल्स हैं और 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और 100 करोड़ रेस किए थे, तो 100 माइनस 60 मतलब 40 करोड़ कंपनी के पास अभी भी पड़ा है। कंपनी ने और जो भी खर्च किया और हमने डिडक्ट कर दिया तो जो बैलेंस है वो अभी तक पड़ा है। तो पहले भी यही होता था, बट पहले जो बैंक्स वगैरह थे वो मॉनिटरिंग करते थे 95% तक, और आखिरी का 5% के बारे में वो इतना ध्यान नहीं करते थे कि कंपनी कहाँ खर्च कर रही है, नहीं खर्च कर रही है, कैसे क्या हो रहा है। बट अब इसमें अमेंडमेंट के हिसाब से ये कह दिया गया है कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होने के नाते जब तक 100 का 100 पूरा का पूरा परसेंट जो है वो खर्च नहीं हो जाता, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉनिटर करती रहेगी, रिपोर्ट करती रहेगी कि भाई कंपनी जो है उसके पास कितना पैसा अभी बाकी है और कितना खर्च हो गया। और जब तक एक एक रुपया खर्च नहीं हो जाता जो पब्लिक इशू के जरिए रेस किया गया उसी ऑब्जेक्ट के लिए जिसको कह के रेस किया गया, ये रेटिंग एजेंसीज देखती रहेंगी, मॉनिटर करती रहेंगी और अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट है वो सबमिट करती रहेंगी बोर्ड को। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है। उसके बाद एंकर इन्वेस्टर को लेके, लॉक इन को लेके बात कही गई है कि ऑल इशू ओपनिंग ऑन और फ्रॉम 1 April 2022 they must be lock in for the anchor investors for a minimum of 90 days for the allotment of 50% of the share allocated to the anchor investors. For the remaining 50% it must continue to be 30 days from the date of allotment. तो ऐसे मान के चलिए कि एंकर इन्वेस्टर जो है उसने लेट्स से 1000 शेयर्स उसको मिले हैं। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ इसलिए ये फिगर ले रहा हूँ। एंकर इन्वेस्टर तो करोड़ों रुपए लगाते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में शेयर परचेज करते हैं, बट जस्ट टू मेक इट ईजी जिससे कि आपको समझ में आ सके, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। तो एंकर इन्वेस्टर्स ने 1000 शेयर्स जो है वो लिए हैं, तो उनका लॉक इन है। ये नहीं कर सकते कि आज उन्होंने लिए और शाम को बेच दिए, तो ये तो मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार आप देखिएगा ऐसा भी होता है कि लोग इसलिए पैसा लगाते हैं, उनको नहीं पता कि सही है कि नहीं, बट वो इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि किसी बड़े नामचीन लोग ने या किसी नामी गिरामी बंदे ने या किसी कंपनी ने पैसा लगाया है। वो इसलिए नहीं लगाते, उन्हें शायद पता भी हो कि कंपनी अच्छी नहीं है या प्रॉब्ली उन्हें कुछ भी नहीं पता, बट वो फॉलो करते हैं कि अगर इसने लगाया पैसा, जिसको भी वो टीवी में सुनते हैं या कहीं इंटरनेट पे या कहीं पे भी, तो तुरंत खुद भी पैसे लगाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बेवकूफ़ थोड़े है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ इसका है, इतनी एक्सपर्टाइज है, तो ये अगर पैसे लगा रहा है तो कुछ सोच के लगा रहा होगा, तो चलो मैं भी लगा देता हूँ, विच इज़ नॉट दी करेक्ट अप्रोच। आपको खुद का अपना रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जो इतना पढ़ा लिखा है या नहीं भी है और वो पैसा लगा रहा है, उसकी सोच कुछ और भी हो सकती है, उसकी कंपनी के साथ कुछ और चीज़ भी हो सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग रादर देन फॉलोइंग एनीबडी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि भाई जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर जो दे दिए वो लॉक इन में रहेंगे। तो कैसे क्या लॉक इन में रहेंगे, तो कहते हैं जो पहला 50% पोर्शन होगा वो जिस दिन अलॉट किया उसके 30 डेज तक लॉक इन में रहेगा। यानी अगर मान लीजिए 1 जनवरी को हमने एंकर इन्वेस्टर्स को 1000 शेयर दिए हैं, तो 1000 में से 500 शेयर जो होंगे वो 30 डेज, तो 1 जनवरी को दिए तो मतलब 31 जनवरी तक ये कुछ भी शेयर अपना बेच नहीं सकते। मतलब जब तक 30 डेज नहीं हो जाते जिस दिन इन्हें अलॉट हुआ है, तब तक ये एक भी अपना शेयर ना बेच सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, तो इनका लॉक इन में रहेगा। लॉक इन का मतलब यही होता है कि आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बट जैसे ही 31 जनवरी आएगी तो 1 जनवरी इनको शेयर्स मिले हैं, 30 दिन तक ये कुछ नहीं कर सकते, तो आ गई 31 जनवरी। 31 जनवरी को ये अपने 50% शेयर्स बेच सकते हैं, या यूँ कह दीजिए कि 1000 में से 500 शेयर बेच सकते हैं। अब जो रिमेनिंग 500 बचे हैं उसके लिए इनका लॉक इन होगा 90 डेज का। 90 डेज का लॉक इन होगा, और जो ये लॉक इन 90 डेज का होगा ऑब्वियसली 90 डेज तक इन्हें होल्ड करना होगा, और 90 डेज के बाद ये भी उस अमाउंट को बेच के बाहर निकल सकते हैं। तो ये इस अमेंडमेंट की जो बात है वो कही गई है। इसका रीज़न अगर हम देखें, आज से पहले अब हो रहा है ये, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है, तो ये चीज़ें तो हो रही हैं। तो बहुत बार आप देखेंगे जिस दिन एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म होता है शेयर का प्राइस गिर जाता है, क्योंकि ये पैसा निकालते हैं। अब जब इन्होंने पैसा निकाला और इतनी ह्यूज क्वांटिटी होती है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा, ये करोड़ों और उससे भी ज़्यादा तौर पे शेयर्स लेते हैं, पैसा लगाते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। मतलब कंपनी का शेयर आपको दिखेगा कि हिल रहा है,
क्योंकि अगर आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन करते रहेंगे शेयर्स के अंदर पूरे दिन भर ट्रांजेक्शन, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब ये आते हैं या ये जाते हैं तो शेयर में थोड़ा बहुत मूवमेंट तो आना तय है ही है। तो और फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये थोड़े कहा जा रहा है कि भाई लॉक इन खत्म हुआ तो आपको बेचना ही है। लॉक इन के बाद ये बने भी रह सकते हैं, अगर इनको लगता है कि भाई ये कंपनी वैल्यूएबल है तो लॉक इन खत्म हुआ है ना, ये थोड़े है कि बेचना ही बेचना है। लॉक इन खत्म हुआ है ठीक है, फिर भी वो वहाँ पे बने हुए, जिस दिन उन्हें अच्छा लगेगा तब निकल सकते हैं। तो लॉक इन एक रास्ता आपको देता है, एक ऑप्शन देता है कि यू कैन सेल नाउ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट यू हैव टू डू इट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे बताई गई है, तो उस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि एंकर इन्वेस्टर अपने कोई भी शेयर पहले 30 दिन तक नहीं बेच सकते, 30 दिन के बाद 50% शेयर बेच सकते हैं, और उसके बाद फर्दर 90 डेज़ का यहाँ पे समय होगा जो रिमेनिंग अपने शेयर्स को वो बेचेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करें या जनरलाइज तौर पे भी इसे देखें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर चार्टर। और ये जो अमेंडमेंट है वो 17 जनवरी 2022 को लाया गया है, और इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि सेबी का ये एक्चुअली जो पूरा मैटर है वो ग्रीवियांस को लेके है, और ये कहा जा रहा है कि सेबी की वेबसाइट पे भी ग्रीवियांस का पूरा हिसाब किताब रहेगा कि कितने ग्रीवियांस सेबी को आए अलग अलग सोर्सेज से, क्योंकि एक मोबाइल ऐप भी है, वेबसाइट भी है सेबी स्कोर्स करके, SCORES, आपने शायद सुना भी होगा। इसके ज़रिए आप किसी भी लिस्टेड एंटिटी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी जब आप एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है कि कहाँ तक या किन किन बातों को लेकर अपील फाइल कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डिविडेंड नहीं मिला, ये नहीं कह सकते कि शेयर का प्राइस पेटीएम जब आया उसका IPO तो उन्होंने शेयर दिया कुछ 2100 रुपये 2150 का IPO के अंदर, जो उसकी लिस्टिंग हुई तो वो कुछ 1900 के आसपास अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, तो लॉस पे लिस्टिंग हुई, और वो दिन है और आज का दिन है, मतलब वो शेयर 500 रुपये तक चला गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार 2200 का मैंने शेयर लिया है क्योंकि IPO पूरा सब्सक्राइब्ड हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि और रादर ओवर सब्सक्राइब्ड ही हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं लगाया, लोगों ने पैसा लगाया है। तो वो सब ये नहीं कह सकते कि मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि आप देखिए कि जब आप पैसे लगाते हैं कहीं पे भी, चाहे म्यूचुअल फंड्स हैं चाहे ये सिक्योरिटी मार्केट है, वो बड़ा एक डिस्क्लेमर एक लाइन के तौर पे टीवी पे भी बहुत जल्दी बोलते हैं, सुनने में आता भी है, नहीं भी बहुत बार, कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट, या ऐसे कुछ बोलते हैं कि आई सपोज इन्वेस्टमेंट इन मार्केट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थोड़ा हो सकता है ग्रामेटिकली इधर उधर बोलें, और मतलब ये है कि आप जब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर रिस्क जुड़ा हुआ है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके का रिस्क है और आपको वो कैसे इफेक्ट करेगा। हिंदी ट्रांसलेशन इस बात का ये है। तो खैर जिनको भी दिक्कतें हैं वो स्कोर्स पोर्टल पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, और सेबी का कहना है कि अगस्त के अंदर उसने अगस्त 2022 के अंदर कुछ 3236 कंप्लेन रिजॉल्व करी हैं, जो कि अच्छी बात है। बट सवाल इस बात पे भी उठता है कि कंपनीज क्यों नहीं ये कर रही हैं और ये मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों? क्या कंपनीज, सेबी जो कर रहा है वो तो करना ही है क्योंकि वो वॉचडॉग है, रेगुलेटर है, बट कंपनीज क्यों नहीं सॉल्व कर पाएँ? क्यों? क्योंकि सब लोग स्कोर्स के बारे में नहीं जानते, बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा होगा लिस्टेड कंपनीज के अंदर, तो वो आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो ये काम तो बहुत अच्छा कर रहा है सेबी, नो डाउट, बट आई थिंक थोड़ा ग्राउंड लेवल पे भी अगर कंपनीज को और ज़्यादा सही से रखा जाए, मेंटेन किया जाए, तो शायद सेबी के पास कंप्लेंट्स ही कम पहुँचे, जो कि और अच्छा होगा। तो कहते हैं टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट, एनहांस अवेयरनेस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर, SEBI wide public notice dated 2011 has published investor charter for security market. As for SEBI own charter, efforts have been made to enhance the effectiveness of the grievance redressal. SEBI has been publishing, जो मैंने अभी आपको कहा, the status of disposal, ऊपर ये SEBI की वेबसाइट से ही लिया गया है। तो SEBI has been publishing the status of disposal of grievance received in scores, और scores की full form ये रही, SEBI का जो complaint redressal system है, on monthly basis. Details of the investor grievance which are pending for more than 3 months with different intermediaries are also published. तो अपनी तरफ से सेबी ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना चाहता है, और ये इस बात का सबूत है क्योंकि सेबी खुलेआम ये दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कितनी कंप्लेंट्स हमने रिजॉल्व कर दी हैं और कितनी ऐसी कंप्लेंट्स हैं, कौन सी कंपनीज के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कि 3 महीने हो जाने के बाद भी रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है, और ये सेबी ने अपना चार्टर पब्लिश करा है जिसमें ये बात कही है
यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आई थिंक मैंने पहले कहीं बताया था, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ सेबी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये जितने भी आपके म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, सबको अपनी वेबसाइट पे ये देना है कि उनके खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स फाइल करी गई हैं, और जितनी कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं उनमें से उन्होंने कितनी रिजॉल्व कर दी हैं, और जो पेंडिंग है उसके रीजंस वगैरह भी उन्हें बताने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सेबी तो एक कलेक्टिव डेटा मेंटेन कर रहा है, क्योंकि सेबी थोड़े ट्रेड करता है, सेबी लिस्टेड थोड़े है, बट जो इंडिविजुअल आपकी ये जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इनके अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेन है तो इनकी वेबसाइट पे भी सारा डेटा अवेलेबल होगा कि उनके क्लाइंट्स को कितनी कंप्लेन हुई हैं ब्रोकरेज फर्म के खिलाफ और कितनी उन्होंने रिजॉल्व कर दी हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। फर्दर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सेबी की जो LODR ऑब्लिगेशंस है उसके अंदर भी अमेंडमेंट लाए गए हैं, और उसका ये कहना है कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया है किसी भी MD का, मैनेजर का, और आप चाहते हैं, मतलब जो कमेटी जो बोर्ड है वो चाहता है कि एक बार फिर से इसको रिकन्सिडर किया जाए, तो रिकन्सिडर फिर शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं। मतलब अगर शेयर होल्डर्स ने मना किया है तो शेयर होल्डर्स के पास ही दोबारा ये जाएगा रिकन्सिडरेशन के लिए। ऐसा नहीं होगा कि शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया कि नहीं भाई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे या रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, तो अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद मिल के तय कर लें। नहीं, शेयर होल्डर्स की जो पावर है वो शेयर होल्डर की है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ एक बार कोई कहता है तो हम मना कर देते हैं, बट दूसरी बार वो शायद समझाता है और बेहतर तरीके से, तो शायद हम मान भी जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि अगर शेयर होल्डर्स ने एक बार मना करा है तो दोबारा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं से पूछा जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ जो नहीं लिखी है, वो ये कि नॉमिनेशन, जब सेकंड टाइम आप शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे तो पहली वाली एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकते, नहीं तो वो कहेंगे ये तो हम ऑलरेडी मना कर चुके हैं, दोबारा क्यों पूछ रहे हो ये चीज़, है ना। उनको शक होगा कि इसी बंदे को कंपनी बोर्ड पे क्यों रखना चाहते हैं, क्यों एक ही बार दो बार कर रहे हैं। तो जब आप सेकंड टाइम शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे तो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का रिटन एक कंसेंट चाहिए होगा, रिकमेंडेशन चाहिए होगी, जो कि शेयर होल्डर्स के सामने आप रखेंगे, जिससे शेयर होल्डर्स को एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस हो सके कि हाँ भाई नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी भी इस बंदे के अपॉइंटमेंट के लिए कह रही है, तो शायद एक बार हमें सोच लेना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। प्लस ये भी कहा गया है अगर किसी बंदे का शेयर सर्टिफिकेट वगैरह लॉस्ट हो जाता है या फट जाता है या इधर उधर हो जाता है तो उसको अब डीमैट के तौर पे शेयर्स मिलेंगे, दोबारा शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। The appointment, पढ़ लेते हैं। The appointment or reappointment of the person including MD or a whole-time director or manager which was earlier rejected by the shareholders at the general meeting shall be done only with the prior approval of shareholders. Issuance of duplicates or new certificate in case of loss or worn out in the dematerialized form. तो कोई भी सर्टिफिकेट जो खो गए हैं या नहीं मिल रहे हैं, जो भी केस है आपके पास नहीं है, बेसिकली मतलब ये है, तो आप दोबारा से सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। अब वो डीमैट के तौर पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए अगर नहीं है तो, और अगर है तो उसी डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं LLP के अंदर जो चेंजेस आए हैं, और यहाँ पे एक नई डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस हुई है जो हम पढ़ेंगे आगे, स्मॉल LLP करके। मुझे नहीं पता कि आपने इससे पहले इसके बारे में सुना है और इसकी जो थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और कैसे किसी भी LLP को आप स्मॉल LLP कहेंगे। विल फाइंड आउट मोर अबाउट इट एज वी मूव अहेड। बट फिलहाल के लिए जो शुरुआत है LLP की वो इस तरीके से करी गई है कि जो बदलाव आए हैं 2022 के अंदर, जो नोटिफिकेशन इशू करी गई है उसके हिसाब से उनका यही कहना है कि ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लाइंसेस को इम्प्रूव किया जाए और सो कॉल्ड एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें करी जा रही हैं। तो कहना है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज प्रोविजन इज टू इम्प्रूव द कंप्लायंस ऑफ LLP एंड टू इम्प्रूव एंड रेगुलेट द LLP. The intention of this section is to identify a natural person that is controlling and exercising the LLP. एक बार पढ़ लेता हूँ फिर सब बात करेंगे। Section 164 of the Companies Act pertaining to the disqualification of appointment of director shall applies to LLP as well. एंड जो 165 है जहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बात करते हैं कंपनीज एक्ट के लिए, वो भी अब LLP के जो सो कॉल्ड एज पार्टनर्स हैं उन पे एप्लीकेबल होगा। तो आप सभी जानते हैं कि एक एक करके अगर हम बात करें कि ब्लैक मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि खतरनाक होता है, हो रहा है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आई थिंक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करा जाए, अदरवाइज़ ये बहुत डिज़ास्ट्रस इफेक्ट लेके आ सकती हैं।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे उस चीज़ का डायरेक्ट कोई कंटेक्स्ट तो नहीं है, बट ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एलएलपी आप चलने दे रहे हैं और उसमें ये पता नहीं हम लगा रहे हैं, ये नहीं पता लगाना चाह रहे कि कौन इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जैसे आप होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में बात करते हैं, फिर हमने आई थिंक रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन है गवर्नेंस में जो अमेंडमेंट आया उसके हिसाब से देखा, तो हमने देखा कि कैसे रिलेटेड पार्टी को ट्रैक डाउन किया जा रहा है जिससे कि पता चले कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। तो कंपनीज वगैरह के कंटेक्स्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज कंपनी का स्ट्रक्चर अपने आप में थोड़ा बड़ा लगता है और ज़्यादा रेगुलेटेड लगता है, ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर है, बट एलएलपी में ऐसा कुछ था नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि अब ये भी लाया गया है इस नोटिफिकेशन के ज़रिए कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एलएलपी जो भी चल रही है इसके अंदर फ़ायदा जो है, बेनिफिट जो है वो किसको हो रहा है। तो लोग बहुत सारे एलएलपी में आपको देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो खुद कर रहे हैं या किसी के कहने पे यहाँ पे इन्वॉल्व है, और अल्टीमेट बेनिफिट किसको जा रहा है ये यहाँ पे पता लगाना एक ऑब्जेक्टिव बन चुका है। साइड बाय साइड जो सेक्शन 164 एंड 165 है कंपनीज एक्ट का, जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के लिए कि भाई अगर उन पर वो अनसाउंड माइंड है, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई इल्ज़ाम है या कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह फाइल नहीं हुए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी एलएलपी के पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। साइड बाय साइड जैसे कि एक डायरेक्टर 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है, उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट का डिवीजन है, तो यहाँ पे भी कहा गया है कि एलएलपी के अंदर भी वही सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जैसे कि शायद पहले होता था कि एक कोई पार्टनर है और वो 50 एलएलपी में पार्टनर है, तो वो चीज़ अब नहीं चलेगी। 20 की अगर लिमिट सेट करी गई है, आने वाले दिनों में ये कम होती है, जो कि होगी फॉर श्योर, तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोई एक चीज़ नहीं लिखी, उन्होंने डायरेक्टली एक सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी जोड़ दी। तो जो कंपनीज एक्ट में इस सेक्शन के अंदर बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस एलएलपी के अंदर भी फ्लो करेंगे, ये उनका यहाँ पे कहना है। फर्दर रीजनल डायरेक्टर लेवल पे भी कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट